Okay, till now you have studied that induced EMFs are produced by three different methods, and in all those three methods you have seen the basic cause was the change of flux. Whenever any conducting loop like structure was put in a magnetic field, and due to any of the three reasons, that either magnetic field was changing, area of the loop was changing, or maybe the orientation of the loop was changing, because of any of these three factors there was a change of flux, and as a result of that Faraday says whenever there is a change of flux linked with any conductor, an induced EMF is produced, and an induced EMF's magnitude was according to Faraday is the rate of change of flux. Now here there is a situation. Let us see whether will there be any induced EMF produced in this situation or not. Look, what I have shown is, here we have a magnetic field which I have shown with some crosses, means it is directed into the board. Okay, it is a uniform magnetic field directed into the board, perpendicular to the plane pointing inwards. And inside this magnetic field, three-dimensional magnetic field, I kept one conductor PQ. Suppose its length is L. And I am holding this conductor in such a way that the length of this conductor is perpendicular to the direction of magnetic field. Angle between direction of field and the length of the conductor is 90 degrees. Okay. Now, if I start moving this wire in this magnetic field in a direction with a certain velocity v, such that the velocity v is perpendicular to both the length of this conductor as well as the magnetic field. Can you see this? Direction of velocity vector v I have shown is perpendicular to the length. Direction of magnetic field is inwards. So direction of velocity vector, if you measure this way, this angle is also 90 degrees. Now this is just a straight wire. It is not in the form of any loop. So it is not bounding any area. And if it is simply moving in this magnetic field in such a described manner, the question is, will there be any induced EMF produced across this wire? Means these two ends of this wire P and Q, will there be any potential difference produced? क्या कोई induced EMF produce होगा? और अगर होगा तो क्यों होगा? क्योंकि अगर फ्लक्स की बात करें तो ये तो एक thin wire है. It is not enclosing any boundary, it is not enclosing any area. So there is nothing like flux linked with this conductor. And if it is moving, there is a change in flux. Will there be any induced EMF? That is the first question. Okay. And now suppose I say that induced EMF will be produced, as the topic is, because the topic says it is motional EMF. That topic itself is telling you that there will be an induced EMF. But the answer has to be found why that induced EMF will be produced. So we are going to actually redefine the meaning of change in flux. A loop put in a magnetic field with some lines of forces passing through it is the flux. But what was the change in flux? When you said flux is changing, you had two types of change in flux so far we have defined. Either the flux was increasing, the number of lines through the loop were increasing in number, or the flux was decreasing, the number of lines passing through that was decreasing. Maybe it was inward or outward, वो और भी बातें हो सकती हैं. But flux को आप इस तरह से देखते थे कि किसी लूप के थ्रू कितनी लाइंस जा रही हैं, और वो फ्लक्स चेंज कब हो रहा है आप कहते थे, आइदर द नंबर ऑफ लाइंस आर इंक्रीजिंग और द नंबर ऑफ लाइंस थ्रू दैट लूप आर डिक्रीजिंग. ये अभी तक का हमारा कॉन्सेप्ट था चेंज ऑफ फ्लक्स का. हियर वी आर गोइंग टू रीडिफाइन द मीनिंग ऑफ चेंज इन फ्लक्स, क्योंकि अगर मैं उसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलूं तो यहां तो कोई एरिया ही नहीं है, और एरिया ही नहीं है तो इस वायर के अक्रॉस कोई फ्लक्स नहीं है, के थ्रू फ्लक्स नहीं है. जब फ्लक्स ही नहीं है देन वेयर इज द चेंज इन फ्लक्स. तो फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज की बात कैसे करें, है ना. तो यहां ऐसा लग रहा है जैसे कोई फ्लक्स चेंज ही नहीं है. तो अगर फ्लक्स चेंज नहीं है तो फैराडे के अनुसार यहां कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ होना भी नहीं चाहिए फिर तो. लेकिन अगर इस वायर PQ को हम मूव करते हैं, जैसा मैंने डिस्क्राइब किया कि दिस लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी, ये तीनों अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ये वायर अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इस वायर के दोनों एंड्स के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है. एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस इज नथिंग बट एन इंड्यूस्ड ईएमएफ. वही इंड्यूस्ड ईएमएफ जो फैराडे ने अपने लॉ में एक्सप्लेन किया. बट हाउ टू अंडरस्टैंड दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ ओवर हियर, वो यहां हुआ तो क्यों हुआ?
So that is why I said we have to redefine the meaning of change in flux. Okay, let us try to understand that. Now let me imagine, अगर मैं इस वायर PQ के साथ, जैसे लास्ट क्लास में आपको याद करो मैंने एक इंड्यूस्ड EMF विथ ए लूप निकाल के बताया था when we were talking about induced EMF produced due to change in area. You remember वहां मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप का एक लूप लिया था और उसमें एक आर्म था Mn जो I said कि is moving. तो you just imagine that fictitious wire again. वो fictitious wire यहां इमेजिन करो ऐसा, तो देखिए वही सिचुएशन आ गई फिर से, है ना, कि ये वो फिक्टिशियस वायर जो हमने वहां पिछली बार ड्रॉ की थी वो है नहीं, यहां पर आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं और ये वायर मूव कर रहा था. तो आपने कहा था ये जो लूप था इसका एरिया चेंज हो रहा था, इस वायर के मूव करने से यहां एरिया चेंज हो रहा था, और जब एरिया चेंज हो रहा था तब आपने कहा था फ्लक्स चेंज हो रहा है. तो फ्लक्स चेंज की वजह क्या थी? फ्लक्स चेंज की वजह इस पर्टिकुलर केस में कि इस वायर का मूवमेंट था, ये वायर का मूव करना एरिया को बढ़ा रहा था. एरिया बढ़ाने से उस एरिया के थ्रू जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस थी वो उनका नंबर में भी इंक्रीज हो रहा था. अगर मैं इस वायर को इस तरह मूव करता तो नंबर ऑफ लाइंस थ्रू द लूप डिक्रीज हो रहा होता. दोनों केसेस में आप कहते हैं फ्लक्स चेंज हुआ है. बट एक्चुअली ये वायर जब यहां से चलकर मान लीजिए एक नई पोजीशन तक पहुंचा था, dx डिस्प्लेसमेंट करके पहुंचा था, तो आपने कहा था फ्लक्स बढ़ा. कितना फ्लक्स बढ़ा था? उस फ्लक्स चेंज को निकालने के लिए आपने क्या किया था? यू कैलकुलेटेड कि टोटल फ्लक्स कितना था, इनिशियली कितना फ्लक्स था और बाद में कितना फ्लक्स हो गया, टोटल फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स. तो आपने देखा था इतना जितना एरिया स्वीप हुआ था इस वायर PQ के द्वारा, वो PQ चलकर जब एक एरिया स्वीप करता है, जितना एरिया स्वीप हुआ था उस एरिया में जितना फ्लक्स बढ़ा उसी को आपने चेंज इन फ्लक्स कह दिया था. Isn't it? तो मैं अब अगर इस लूप का ये वाला जो फिक्टिशियस वायर था वो नहीं कंसिडर करूं कि ये नहीं है, और सिर्फ इस वायर को वैसे ही मूव करूं कि यहां से चलकर ये वायर यहां तक पहुंचा, P डैश Q डैश तक पहुंचा, कुछ टाइम लगाकर वो यहां तक पहुंचा, तभी भी तो उसने यहां से यहां तक चलने में वही एरिया स्वीप किया होगा. और उस एरिया को स्वीप करने में करते करते, कैन यू अंडरस्टैंड, ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस थी ये उन लाइंस ऑफ फोर्सेस को कट करता चला जा रहा था कि यहां एक लाइन ऑफ फोर्स है, यहां एक लाइन ऑफ फोर्स है, यहां है, ऐसे नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस है. और ये वायर जब ऐसा चल रहा था तो इनकी कुछ लाइंस ऑफ फोर्सेस को वो इंटरसेक्ट करता हुआ आगे बढ़ रहा था. तो उसने कितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस को PQ से P डैश Q डैश तक जाने में कट किया, रास्ते में कितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस को उसने अपने रास्ते में कट किया, जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस को कट किया वही एक्चुअली चेंज इन फ्लक्स था. तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि हम यहां चेंज इन फ्लक्स को रीडिफाइन करें. तो फ्लक्स चेंज इज नॉट नेसेसरली कि दैट हाउ मेनी लाइंस ऑफ फोर्सेस थ्रू ए लूप हैज इंक्रीज्ड और हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस थ्रू ए लूप हैज डिक्रीज्ड. ये जरूरी नहीं है अब हमारे लिए. चेंज इन फ्लक्स मीन्स whenever a conductor is moving in a magnetic field and it is moving in such a way that while moving it happens to cut the magnetic lines of forces, then the number of lines of forces cut by that moving conductor in a magnetic field in any given interval of time is the change in flux in that interval of time. ठीक है, तो इस तरह से देखिए सोच हमारी बदल रही है कि फ्लक्स चेंज का मतलब हमेशा इंक्रीजिंग फ्लक्स एंड डिक्रीजिंग फ्लक्स नहीं होता. एरिया सर्टेन एरिया था और उसमें से कितनी लाइंस बढ़ी, या एरिया बढ़ गया तो कितनी लाइंस उसके थ्रू बढ़ गई. इट इज नॉट दैट हम चेंज इन फ्लक्स को हर बार ऐसे ही डिफाइन करेंगे. यहां हम देखने वाले हैं कि एक नई बात हमारे सामने आई कि फ्लक्स चेंज इज ड्यू टू इज मे बी लिंक्ड अक्रॉस वन थिन वायर विच इज जस्ट मूविंग. जस्ट इमेजिन कि ये वायर अगर ये ऐसा जो रखा था, मैंने आपसे कहा कि इस वायर को मैंने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव किया. अगर मैं इस वायर को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल मूव करूं, ऐसा इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स, तब तो वो लाइंस ऑफ फोर्सेस के पैरेलल चलेगा ना. और ऐसा चलेगा, ये मन में सवाल जरूर आना चाहिए था आपके कि अगर ये वायर को हम ऐसा सीधा सीधा लेके चलते, वायर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के पैरेलल लेके चलते, तो डेफिनेटली फिर तो वो कट करेगा नहीं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को. कि ये लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, ऐसी मान लीजिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, ये वायर रखा हुआ है और मैं इसके साथ साथ ऐसा लेके चलूं.
अगर मैं ऐसा कट करता हुआ चल रहा था तब तो मैग्नेटिक लाइंस को कट कर रहा है, ठीक है, जैसे ये मैग्नेटिक लाइंस इनवर्ड है, मैं इस वायर को ऐसा लेके चल रहा हूं तो ये कट कर रहा है, लेकिन मैं अगर इस वायर को लेकर ऐसा चलता तब तो वो मैग्नेटिक लाइंस को कट नहीं करता, इजंट इट? तब आप ये नोटिस भी करेंगे कि तब इस वायर के अक्रॉस कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा भी नहीं। इसीलिए हम इस कंडक्टर, इस तरह के जो पोटेंशियल डिफरेंस को कह रहे हैं वो है मोशनल ईएमएफ। ईएमएफ प्रोड्यूस्ड अक्रॉस अ मूविंग कंडक्टर व्हेन इट इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन सच अ वे दैट इट हैपेंस टू कट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब ये बिल्कुल 90 डिग्री पर चल रहा है, थोड़ा सा एंगल पर चलता तो भी कट करता, लेकिन उस रेट से नहीं कट करता जिस रेट से अगर वो परपेंडिकुलर चलता। यू कैन अंडरस्टैंड कि वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के अगर परपेंडिकुलर मैंने चलाया था तब वो मैग्नेटिक फ्लक्स सबसे ज्यादा कट करेगा, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस को कट करेगा। जितना उसका एंगल उसके पैरेलल होता जाएगा, मतलब उसका एंगल जैसे जैसे कम होता जाएगा, 90 से 0 की तरफ बढ़ेगा, उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो कम होता जाएगा। तो हमें उसकी वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना होता है जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। और एक बात कि लेंथ के भी परपेंडिकुलर है। आप सोचिए कि मैं इस वायर को मैग्नेटिक फील्ड के मतलब ऐसा रखकर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड के ऐसा लेके मूव करूं, देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, परपेंडिकुलर तो है वेलोसिटी का डायरेक्शन, बट वो लेंथ के पैरेलल है वेलोसिटी। ऐसे ऐसे मैं वायर को लेके चलूं तभी भी तो वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को कट नहीं करेगा। मैग्नेटिक लाइंस स्ट्रेट कंडक्टर ऐसे लेके चलूं मैं, वेलोसिटी का डायरेक्शन लेंथ के पैरेलल है अगर, तभी भी तो वो मैग्नेटिक लाइंस को कट नहीं करेगा। देन ऑल्सो देयर विल बी नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड वेरेवर ए मूविंग कंडक्टर हैपेंस टू कट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। एंड जब वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को कट करता है तो वो कितनी लाइंस को कट कर जाता है किसी इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट इज द चेंज इन फ्लक्स। तो किसी इंटरवल में कितनी लाइंस कट हुई डिवाइडेड बाय टाइम, दैट बिकम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। But let us come to this result of induced EMF across PQ not by considering the change in flux. हम फ्लक्स की बात ही नहीं कर रहे इसमें, है ना, बट मैं आपको कह रहा था हमने फ्लक्स को रीडिफाइन किया कि इट्स नॉट कि इसमें फ्लक्स चेंज हो नहीं रहा था, लेकिन यहां पर देखिए हम इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन एक अलग वे में डिराइव करेंगे। जो आपने लास्ट डेरिवेशन की थी कि जब मैंने इस वायर को उस फ्रेम में मूव किया था और उसमें आपने एरिया का आइडिया लगाकर डेरिवेशन किया था, डू यू रिमेंबर? वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन आपको मिला था B इंटू एल इंटू वी, याद करो, वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन ये आया था। लेट अस सी, हम इसी रिजल्ट को यहां पर एक दूसरे मेथड से डिराइव करने वाले हैं और यहां पर हम फ्लक्स की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि मतलब फैराडे का लॉ गलत है कि फ्लक्स की चेंज से नहीं होता है, लेकिन हमने यहां पर फैराडे के लॉ में जो चेंज इन फ्लक्स की बात कही गई है उसको रीडिफाइन किया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब देखिए यहां हम कैसे डिराइव करने वाले हैं। तो यहां पर मैंने कहा एक मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड्स, पॉइंटिंग इनवर्ड्स, वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। देयर इज अ वायर PQ whose length is suppose L and it is being moved with a velocity V and the direction of velocity V I have shown. Consider मतलब velocity is V that is perpendicular to both the length of the conductor and the direction of magnetic field. Now when you are moving this wire, इस वायर को लेके जब मैं चल रहा हूं, when I am saying कि wire means it is a conducting wire. तो what is there inside a conductor? किसको कंडक्टर कहते थे? कंडक्टर मीन्स जिसमें there are plenty and plenty of free electrons. तो इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमने पढ़ा कि वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है किसी डायरेक्शन में वो 0 है अनलेस यू अप्लाई सम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। तो अभी ये कंडक्टर सिंपली रखा हुआ है, मतलब उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो उनकी हम एवरेज वेलोसिटी कह रहे हैं कि वो 0 है। तो अभी हम कह सकते हैं कि सब इलेक्ट्रॉन स्टैटिक है। एवरेज वेलोसिटी 0 मींस हम मान के जा रहे हैं कि एज इफ सब के सब रेस्ट में है। एवरेज वेलोसिटी तब भी तो 0 आएगी ना कि सब रेस्ट में होते, है ना, सब रैंडमली मूव कर रहे हैं तो एवरेज लेकिन 0 है। तो उसमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन को इमेजिन करिए कि सोचिए कि मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन को देख रहा हूं, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है एंड फॉर टाइम बीइंग लेट अस कंसीडर द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एज +E इंस्टेड ऑफ -E, क्योंकि आप प्लस ई के ऊपर जो फोर्स निकालने वाले हैं, जो भी हम करने वाले हैं, -E के ऊपर करेंगे तो वो उसका ठीक उल्टा हो जाएगा। तो एक डायरेक्शन, एक साइड लेके चलते हैं। लेट अस अज्यूम कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, उसका चार्ज है +E, ठीक है। ऑफ कोर्स यू नो कि वो नेगेटिव होता है, मैं +E लेके चलता हूं और मैं इस वायर को लेके चल रहा हूं। वायर इज बीइंग मूव्ड लाइक दिस। तो व्हेन आई एम सेइंग वायर इज बीइंग मूव्ड, दैट मींस दैट इलेक्ट्रॉन इज आल्सो मूविंग। तो आप उस इलेक्ट्रॉन को भी लेकर चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी v, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द वायर। हम उसके अंदर जो रैंडम वेलोसिटीज हैं उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं,
Okay, so the wire is moved with a velocity v. That means that free electron is also moving with a velocity v in a direction perpendicular to the direction of magnetic field. ठीक है? Now you already know कि whenever a charge is moving in a magnetic field, a charge put in a magnetic field, and if it is made to move, it experiences a magnetic Lorentz force. याद करो, the force was, क्या था force? F is equals to Q V cross B, that means Q V B sin थीटा होता था. तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन पर भी फोर्स लगेगा. जब मैं इस वायर को लेके चलता हूं तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन पर भी फोर्स लगेगा. कितना फोर्स लगेगा? देखिए, फोर्स ऑन दैट इलेक्ट्रॉन विल बी, सपोज मैंने इसको लिखा FE, ई स्टैंड्स फॉर फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं. उसमें कितना फोर्स लगेगा? Q मींस उसका चार्ज, E, V जितनी वेलोसिटी से उस कंडक्टर को हम लेके चल रहे हैं वही वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है. किस में चल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड B में. किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? वेलोसिटी का और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 है, तो EVB sin 90, sin 90 means 1. So force on that electron is EVB. अब ये फोर्स किस तरफ लगेगा? मैंने कहा था पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो हम पॉजिटिव लेके चलते हैं तो V क्रॉस B कर लेते हैं, क्योंकि अगर Q पॉजिटिव है तो V क्रॉस B विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, तो अगर ये V है, ये B है, तो वेलोसिटी V क्रॉस B, राइट हैंड थंब रूल, V क्रॉस B, फोर्स किधर आया? इट इज टूवर्ड्स P. मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब वो प्लस चार्ज होगा तो वो इस तरफ जाता है. लेकिन हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली Q की तरफ आएंगे. माइनस चार्ज विल कम टूवर्ड्स Q, तो दे विल लीव बिहाइंड पॉजिटिव चार्ज एट P. सो Q एंड स्टार्ट्स डेवलपिंग अ नेगेटिव चार्ज एंड P एंड स्टार्ट्स डेवलपिंग अ पॉजिटिव चार्ज. जैसे जैसे आप इस वायर को लेकर चलेंगे, इस फोर्स का, ये फोर्स एक इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगेगा, ऐसे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा. दैट मींस ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स वुड लाइक टू मूव टुवर्ड्स एंड Q एंड लीविंग बिहाइंड सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स P. तो आप सोचिए कि ये पॉजिटिव एंड बनता जा रहा है, ये नेगेटिव एंड. तो एक वायर के अंदर एक एंड पॉजिटिव है और एक एंड नेगेटिव है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, there will be an electric field produced directed from positive to negative, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज. अगर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इतना लगा, मतलब चार्ज E पर फोर्स इतना लगा, तो पर यूनिट चार्ज फोर्स कितना लगा? फोर्स अपॉन चार्ज, Fe अपॉन E. तो वो कितना है? Fe अपॉन E इज V इंटू B. तो दिस इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज. हर इलेक्ट्रॉन क्योंकि आइडेंटिकल है, दैट मीन्स हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स सेम लग रहा होगा. जैसे एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाला था, तो चाहे मैं 10 इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स निकाल लूं, वो 10E होगा तो 10 टाइम्स फोर्स हो जाएगा. तो मैं एक इलेक्ट्रॉन का निकालूं तो Fe हो गया, तो वो फोर्स डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कर दिया, तो आई गॉट एन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इट्स डायरेक्शन किधर है? मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर दिख रहा है? P टू Q. देखिए वही लिखा है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड E विच इज Fe अपॉन E इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द कंडक्टर whose direction is from P to Q, directed from P to Q. अब देखिए एक इंटरेस्टिंग सी बात है, अगर P से Q की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है, सोचिए आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में. अंदर ही अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ, वायर के अंदर है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. डू यू रिमेंबर कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E में मैं एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो उस पर एक फोर्स लगता था. किस डायरेक्शन में फोर्स लगता था? फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. लेकिन अगर एक नेगेटिव चार्ज रख दूं तो उस पर फोर्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता था, होता था ना. तो अब इस वायर के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स जिसको कि हम लेके चल रहे थे कंडक्टर के साथ, वो इलेक्ट्रॉन्स यहां आके इकट्ठे होना चाह रहे हैं, अपने पीछे वो वायर को पॉजिटिवली चार्ज छोड़ देते हैं. तो सोचिए जब ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ क्रिएट हो रही है जिसका डायरेक्शन P से Q की तरफ है. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करने की कोशिश कर रहा होगा? वो तो इलेक्ट्रॉन्स पर जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं उन पर फोर्स उधर लगाने की कोशिश कर रहा होगा. तो इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पर दो दो फोर्सेस एक साथ लगती हैं. जैसे ही आप इसको मोशन में लाए, लेकर चले, तो मोशन की वजह से, वेलोसिटी की वजह से ये फोर्स लगा. लेकिन इस वेलोसिटी की वजह से जब ये फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन्स यहां आए, यहां पॉजिटिव हुआ, तो इलेक्ट्रॉन्स ने ही अपने लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर ली. जिस फोर्स से वो इलेक्ट्रॉन्स यहां एक्यूमुलेट हुए थे, उन्हीं की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड उनको वापस लाने की कोशिश करता है. दैट मीन्स कहीं एक स्टेबल सिचुएशन आ जाएगी. मतलब फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
force which is on the electrons due to their motion due to the magnetic field, and force which is produced by this electric field on the electrons which is trying to bring it back, जो उसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। जहां ये बैलेंस हो जाएंगे, यहां पॉजिटिव एक बना रहेगा या नेगेटिव बना रहेगा। कब तक बना रहेगा? जब तक आप इस वायर को लेकर चल रहे हैं। अब मान लीजिए मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूं, थोड़ा सा तेज चलाने लगूं, मतलब ये फोर्स बढ़ा दिया आपने। ये फोर्स बढ़ाया मतलब और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इधर, और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे मतलब ये और पॉजिटिव हो जाएगा, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है ना? फिर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बढ़ जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे रहकर यहां पर स्टेबल हो जाएंगे। मतलब मोर इज द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, यू इंक्रीज द वेलोसिटी, मोर विल बी द चार्ज एक्यूमुलेटेड। लेकिन एक स्टेज पर आकर वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। तो जहां स्टेबलाइज हो गया, मान लीजिए वो यहां पर कुछ चार्ज इकट्ठा हो गया, यहां नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, तो इन दोनों एंड्स के अक्रॉस इसका मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। जस्ट लाइक ये कैपेसिटर है, सोचिए कि एक कैपेसिटर बन गया है, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, और दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस लेंथ है। अगर एक कैपेसिटर पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट विद सर्टेन गैप बिटवीन देम चार्ज कर दिया जाता था, तो उस चार्ज करने के लिए हमें उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ता था। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता था? कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते थे? द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q व्हिच इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, वही इंड्यूस्ड ईएमएफ है। कितना होगा? दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कैसे निकालते थे? याद करो, कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, E इंटू D करते थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू डिस्टेंस मतलब L, तो E is V into B. So the induced EMF which is now produced across P and Q is VBL. Can you see? It is the same expression which you got last time when you considered the change in area. मतलब फ्लक्स चेंज जब आपने कंसीडर किया था तब भी एक्सप्रेशन यही आया था। अभी मैं कोई फ्लक्स की बात ही नहीं कर रहा हूं, यहाँ तो बात मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात चल रही है। सो देयर ऑल्सो वी गॉट द सेम एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो हमने फ्लक्स चेंज को रीडिफाइन किया वो कंसिडर, क्योंकि हम फैराडे की बात को रिजेक्ट नहीं कर सकते, फ्लक्स चेंज को भी कंसिडर करके रिजल्ट्स वही आ रहे हैं हमारे पास, है ना। हमारी साइंसेस चीजों को एक्सेप्ट तब करती है जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे मैच करती हुई थ्योरी हो हमारी। तो फैराडे की थ्योरी सब चीजें करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है, वही रिजल्ट्स दे रही है। तो वी कैन नॉट रिजेक्ट द फैराडेज लॉ, है। तो ये नहीं कि मोशनल लॉ, मोशनल ईएमएफ इज द करेक्ट थिंग, फैराडे की लॉ बातें गलत थी, नहीं। फैराडे की थ्योरी भी उस बात को एज इट इज डिराइव कर देती है, सारे रिजल्ट्स को हमें वैसे की वैसे ही दे रही है। तो वी एक्सेप्ट फैराडेज लॉ, हम मानते हैं कि फ्लक्स चेंज करने से ही इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। ओनली थिंग इज कि जब आप मोशनल ईएमएफ को पढ़ना शुरू कर देते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बेसिकली मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की वजह से हो रही है, तो वी जस्ट हैव टू जस्टिफाई फैराडेज लॉ इन अ वे कि फैराडे ने जो फ्लक्स चेंज की बात की है उसको हम रीडिफाइन कर लें। तो Faraday's law which says that change in flux is always responsible for induced EMF. Change in flux is not always an increase in flux or a decrease in flux. Flux change means whenever a conductor is in motion, moving conductors if happens to cut the magnetic lines of forces, there will be an induced EMF. So इस बात को पढ़कर, इस बात को समझकर, now you will see several examples, बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स अब आपके दिमाग में आने लगेंगे। You remember हमने अर्थ मैग्नेटिज्म की बात की थी, you have a magnetic field around the earth and we all remain in the earth. That means if you stretch your hands like this, if you are having your hands stretched like this and you are moving and you are running, if you are running with your hands stretched like this, that means you are cutting the magnetic lines of forces of earth. कौन सी? मान लीजिए मैं वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ की बात करूं, याद करो हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था। तो अगर मैं अपने हाथों को स्ट्रेच करके भाग रहा हूं, भागने पर क्या हो रहा है? मतलब मैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को कट कर रहा हूं। तो क्या मेरे इस एंड और इस एंड के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता होगा? मेरी एक उंगली पॉजिटिव और एक एंड नेगेटिव हो जाती होगी क्या? डेफिनेटली हो जाती है, यस। जब अगर आप अपने हाथों को स्ट्रेच करके अगर हॉरिजॉन्टली भाग रहे हैं, यू आर मूविंग विथ ए वेलोसिटी v in the vertical component of magnetic field, length of your arm means both the arms, जो पॉइंट्स दोनों फिंगर टिप्स के बीच में जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस l है। तो with what velocity you are moving, what is the magnetic vertical component of magnetic field into the length, that is distance bit, multiply कर लिए, you will get the induced EMF.
ओके हाँ, ऑफ कोर्स हम उस पोटेंशियल डिफरेंस को फील नहीं करते हैं कि मैं अगर अपनी उस उंगली और इस उंगली के अक्रॉस एक बल्ब लगा दूं तो क्या बल्ब जलता रहेगा? मैं अपने सर के ऊपर एक बल्ब लगा लूं और एक तार इस फिंगर से और इस फिंगर से जोड़कर भागूं तो क्या जलने लगेगा? मे भी शायद ना जलता हुआ देख पाए, क्योंकि अगर आप वो कैलकुलेशन करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि हम जिस मैग्नेटिक फील्ड में भाग रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड बहुत बहुत वीक है, ठीक है? इफ यू कैलकुलेट इट यू मे गेट सम माइक्रो वोल्ट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बट यू विल गेट इट, डेफिनेटली यू विल गेट इट, है ना? इट मींस जब एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, उसके विंग्स भी तो वर्टिकल कंपोनेंट्स को कट कर रहे हैं। एक ट्रेन रन कर रही है, एक ट्रेन रन करते करते उसके व्हील्स के एक्सेल भी अर्थ के वर्टिकल कंपोनेंट्स को कट कर रहे हैं, तो क्या व्हील्स के अक्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है? उस एयरक्राफ्ट के विंग्स के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है? यस, प्रोड्यूस होता है भाई, ये कैलकुलेशन शो करती हैं उसके अक्रॉस वो इंड्यूस्ड ईएमएफ मेजरेबल भी है, इतना भी कम नहीं है कि हम उसको नाप नहीं सकते, इट कैन बी मेजर्ड, ठीक है? इवन यू नो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हुए हम ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं, हम एक जनरेटर बना सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम एक सिंपल जनरेटर भी बना सकते हैं। ओके, लेट अस कम टू दैट जनरेटर विद द हेल्प ऑफ सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के थ्रू हम उस तक पहुंचते हैं। पहले यहां तक क्लियर हो गया सबको? देखिए एक छोटी सी प्रॉब्लम देखते करके सॉल्व करते हैं। लेट अस इमेजिन अ ट्रेन इज रनिंग एंड दैट ट्रेन इज रनिंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर्स पर आवर। ये वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन मैंने आपको दे दी है। द ट्रेन इज रनिंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर्स पर आवर। नाउ द टू व्हील्स ऑफ that the train, any two wheels, है ना, two parallel wheels जो है उसके, they are connected through with the help of an axle। एक सेंट्रल में उनके दोनों व्हील्स के बीच में एक एक्सल लगी हुई है, एक रॉड से जुड़ा हुआ है ना, वो व्हील घूमता है तो दोनों सेंटर में एक एक्सल से जुड़ा हुआ है। सपोज द लेंथ ऑफ दैट एक्सल इज 2 मीटर, 2 मीटर लंबा एक्सल है। यू नो आपके वो जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनके बीच का जो ब्रॉड गेजेस आप कहते हैं, उनकी डिस्टेंस लगभग 1.67 मीटर्स होती है। मैं 2 मीटर्स ले रहा हूं, एक्सल की लेंथ 2 मीटर है मान लीजिए, जस्ट टू मेक द कैलकुलेशन इजियर। ओके, तो वो ट्रेन जहां ट्रैवल कर रही है वहां पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए है 0.4 गॉस। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ वर्टिकल कंपोनेंट इज 0.4 गॉस। मैंने वर्टिकल कंपोनेंट इसलिए दिया क्योंकि वो चलते चलते जो एक्सल है, एक्सल तो हॉरिजॉन्टली चल रहा है, वो चलते चलते हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को तो कट करेगा नहीं, वो तो उसके पैरेलल चल रहा है, लेकिन एक्सल जो है चलते चलते वर्टिकल कंपोनेंट्स को जरूर कट करेगा। तो लेट अस कैलकुलेट कि व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड अक्रॉस ईच एक्सल ऑफ द व्हील। एवरी एक्सल विच इज बिटवीन टू व्हील्स, उसके एक्सल के दोनों एंड्स के अक्रॉस कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। करिए कैलकुलेट, बताइए कितना आएगा। सी दिस इज द रिजल्ट। पहले हमें इसे कन्वर्ट करना चाहिए। 0.4 गॉस दिया था तो इसको हमने लिखा 0.4 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, बिकॉज यू नो 1 गॉस वाज 10 टू द पावर -4 टेस्ला। वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर में दी है, इसको चेंज करो, मल्टीप्लाइड बाय 5/18, यू विल गेट 25 मीटर्स पर सेकेंड स्पीड है उसकी। लेंथ इज 2 मीटर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज B इंटू L इंटू V। ठीक है, B मीन्स 0.4 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू लेंथ इज 2 इंटू 25, मल्टीप्लाइड, you get 2 into 10 to the power -3 volt, or you can say 2 millivolt। तो देखिए ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बहुत छोटा सा है ना, क्योंकि यू में से कि ये इसलिए कम ईएमएफ आया क्योंकि शायद मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम है। इफ इट इज ए स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ाई जा सकती थी, है ना। या अगर हम और हायर वेलोसिटी से चलते, उसका रॉड को मूव करते तो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ सकती थी, है ना। सिमिलर प्रॉब्लम्स कैन बी कि सपोज देयर इज ए कंडक्टिंग रॉड ऑफ सर्टेन लेंथ। एक रॉड है, एक कॉपर रॉड है, सोचिए, इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट विथ इट्स लेंथ, जो लेंथ है along east west direction, if it is having its length along east west direction, and if it is made to fall down, will there be any induced EMF? सोचिए जरा मुझे बताइए कि if a rod of certain length, ये एक रॉड है, ठीक है, this rod's one end is P, another end is Q, it is dropped with P end towards west, Q ends towards east, ऐसा है मान लीजिए, it is dropped vertically downwards, ये नॉर्थ है, geographic north है, geographic south है। If it is dropped, will there be any induced EMF? If yes, why? And which end of this conductor? East end or west end? P और Q छोड़ दीजिए। East end or west end? Which end will be positive and which end will be negative? सोचिए, मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। Yes.
तो देखिए क्या एक्सप्लेनेशन है, मैंने क्यों इसको ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चूज किया। यू नो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, आई टोल्ड यू इन अर्थ मैग्नेटिज्म दे रन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ टू ज्योग्राफिकल नॉर्थ अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ट्रैवल करती हैं, है ना। तो अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को जब हम रिजॉल्व करते थे तो हमने कहा था उसकी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है H और एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है V। तो ये जो रॉड था वर्टिकली गिरता हुआ तो वर्टिकल कंपोनेंट को तो कट करेगा नहीं, बट अगर वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, गिरता हुआ नॉर्थ साउथ सॉरी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को जरूर कट करेगा। अगर आप उसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी रखकर रॉड को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखकर गिराएंगे तो वो ना तो वर्टिकल को कम कट करेगा ना ही हॉरिजॉन्टल को, तब कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं होगी। इसलिए मैंने रॉड को कहा था इट इज केप्ट विथ लेंथ अलोंग ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। तो मान लीजिए ये वाला एंड उसका टुवर्ड्स ईस्ट है, ये वाला एंड टुवर्ड्स वेस्ट है, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इफ इट इज ड्रॉप्ड लाइक दिस, इफ इट इज फॉलिंग लाइक दिस, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करते हैं और हमें पता चल जाएगा कि विच एंड ऑफ दीज टू ऑफ दिस वायर विल बिकम पॉजिटिव एंड विच एंड विल बिकम नेगेटिव। माइंड इट, दिस इज द सोर्स, ये सोर्स ऑफ ईएमएफ का काम कर रहा है ना। तो राइट हैंड रूल में क्या था, फोर फिंगर फील्ड, फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन, किधर गिर रहा है ये वायर, नीचे गिर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। वायर में डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, रिमेंबर इट। तो करंट इज फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, करंट इधर जाने वाला है वेस्ट टू ईस्ट, इसका मतलब करंट मतलब फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब अब ये वायर अगर कहीं कनेक्टेड नहीं है दैट मीन्स ईस्ट वाले एंड पर आकर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और यहां पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, तो द वेस्ट एंड विल बिकम नेगेटिव एंड ईस्ट एंड विल बिकम पॉजिटिव। क्लियर है ये बात। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं इसमें। देखिए ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हियर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड आई हैव शोन, सपोज दैट मैग्नेटिक फील्ड इज बी, आई एम नॉट गिविंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यूज, सिर्फ वेरिएबल के टर्म्स में करते हैं। देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनवर्ड्स मान लीजिए, ओके। वन रॉड PQ यू कैन सी, देयर इज अ रॉड PQ, वायर है, गुड कंडक्टिंग रॉड है, यू कैन से PQ, it is put in this magnetic field in such a way that length of this conductor is perpendicular to the field. Now the two ends of this conductor are P and Q and the length of this conductor is L. Now about point P को हमने सेंटर मान दिया है, मान लीजिए about point P this rod is being rotated. It is being rotated with P as center. Okay? It is rotated with a angular velocity of omega. ये rod ऐसे rotate हो रहा है with the plane of rotation remaining in perpendicular to the direction of magnetic field. उसका plane of rotation जो है वो magnetic field के perpendicular है. It is rotated with a constant velocity, angular velocity omega. Will there be an induced EMF produced across this wire PQ? If yes, what will be the induced EMF and which end, P or Q, will behave as higher potential or means positive potential and which end will behave as negative potential? करिए बताइए मुझे कैसे कैलकुलेट करेंगे। लुक, इसमें एक रॉड थी जिसकी लेंथ हमने कहा कितना है, टाइम पीरियड ऑफ दिस रॉड इज लेंथ ऑफ दिस रॉड इज L. इट इज बीइंग रोटेटेड विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, है ना। नाउ सपोज मैं इसमें ऐसा बताता हूं, लेट T इज द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ये रॉड अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में टाइम T लगाता है, मान लीजिए कैपिटल T। तो बाय डेफिनेशन एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी इज 2 पाई अपॉन कैपिटल T, isn't it? 2 पाई अपॉन कैपिटल T इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी, इवन दो हमें T की वैल्यू दी नहीं और वो हमें चाहिए भी नहीं, तो इसी T कैन बी रिटन एज 2 पाई अपॉन ओमेगा, राइट। नाउ इसी ये जब रॉड रोटेट कर रहा है, रोटेट करते करते कैन यू सी वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को कट भी कर रहा है ना। हम यहां पर फैराडे के लॉ को यूज करते हैं कि व्हेन दिस रॉड इज मूविंग, इट इज रोटेटिंग, it happens to cut those magnetic lines of forces and in one rotation जितना एरिया स्वीप किया होगा उसने एक रोटेशन में और उस एरिया में जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस उसके रास्ते में आए होंगे उसने उनको कट किया। इट मींस इन वन रोटेशन इन अ टाइम इंटरवल ऑफ T जितना फ्लक्स उस लूप में होगा वही चेंज इन फ्लक्स हो गया, इसका मतलब उतनी ही लाइंस ऑफ फोर्सेस को उसने एक रेवोल्यूशन में कट किया। तो देखिए हम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए वो फॉर्मूला जो आपने अभी पढ़ा BLV उसको यूज नहीं करेंगे,
हम फैराडे के लॉ को यूज करते हैं, है ना, इसलिए हमने कहा था फैराडे के लॉ को हम रिजेक्ट नहीं करने वाले, हम रीडिफाइन कर रहे थे। तो व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ? इट सेज इट इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब d5 अपॉन dt में जो टाइम इंटरवल मैं ले रहा हूं वो एक रेवोल्यूशन का टाइम है। सपोज dt को मैंने एक इंटरवल रोटेशन का टाइम ले लिया, तो एक रोटेशन में इस रॉड ने एक रोटेशन में कितना एरिया स्वीप किया? एरिया स्वेप्ट इज एरिया स्वेप्ट पाई एल स्क्वायर, एरिया ऑफ द सर्कल, और इस एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो बी है, तो कितना फ्लक्स चेंज किया उसने, कितने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को कट किया, मतलब जितना फ्लक्स था इस एरिया में, तो फ्लक्स इज कैलकुलेटेड एज बी इंटू एरिया। ओके, तो b इंटू एरिया, जितना फ्लक्स था उतना फ्लक्स उसने t सेकेंड्स में कट किया, दैट बिकम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो b इंटू पाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई t, तो t की वैल्यू अब रख दीजिए 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओके, पाई एंड पाई कैंसल आउट, you get E is equals to half B L square into omega. This is the value of induced EMF produced. अब जरा इसमें ये भी देख लें कि इसका कौन सा एंड पॉजिटिव है और कौन सा एंड नेगेटिव है। कौन सा एंड पॉजिटिव होगा? सोचिए, कौन सा एंड पॉजिटिव है, कौन सा एंड नेगेटिव है। मैं किसी भी पॉइंट पर, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हूं, सपोज मैं इस वक्त देखूं तो इसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये है, राइट हैंड रूल यूज करिए, फील्ड इनवर्ड्स, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, कहीं पर भी देखिए ऐसा, ये रॉड यहां पहुंच जाएगा तो फील्ड ऐसा, डायरेक्शन ऑफ मोशन है। इस वक्त मैं देख रहा हूं डायरेक्शन ऑफ मोशन थंब, करंट Q से P, डायरेक्शन ऑफ करंट अगर Q से P है, दैट मींस P इज गोइंग टू बिकम पॉजिटिव एंड Q इज गोइंग टू बिकम नेगेटिव। ठीक है, Q विल बिहेव एज नेगेटिव, करंट का मतलब हमेशा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज याद करिए, तो वो पॉजिटिव जो है P की तरफ आ रहा है, दैट मींस Q एंड इज गोइंग टू बिकम नेगेटिव। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द पोलैरिटीज ऑफ दिस कंडक्टर। तो ये कंडक्टर जब तक रोटेट करता रहेगा ऐसा, इसका सेंटर पॉइंट पॉजिटिव बना रहेगा, आउटर एंड नेगेटिव पोटेंशियल पे बना रहेगा, और इन दोनों एंड्स के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना, अगर यहां एक और सिचुएशन पूछूं कि मैं एक रॉड के साथ साथ कनेक्ट कर देता हूं, एक और रॉड कनेक्टेड है जो P से भी कनेक्टेड है और एक पॉइंट Q डैश है, दूसरी रॉड है, उसकी भी लेंथ L है, वो भी साथ साथ घूम रही है, तो उसके भी अक्रॉस यही इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा ना, क्योंकि वो भी तो उसी के साथ साथ घूम रहा है। तो दैट मींस इफ यू इमेजिन नंबर ऑफ रॉड्स लाइक दिस, सेवरल रॉड्स लाइक दिस, ऐसे बहुत सारी स्पोक्स कनेक्ट हो गई हैं, हाँ, जैसे एक व्हील की स्पोक्स है, ऑल द स्पोक्स आर रोटेटिंग इन द सेम ओरिएंटेशन, दैट मींस एवरी रॉड्स सेंटर मोस्ट पॉइंट विल बी पॉजिटिव, आउटर एंड्स विल बी नेगेटिव। सोचिए कि मैं आउटर एंड्स को सबको जोड़ देता हूं एक रिम से, जैसे एक साइकिल की रिम होती है, तो ये सारे रॉड्स एज इफ P और रिम के साथ पैरेलल में कनेक्ट हो गए, दैट मींस दिस रिम विल बी एट नेगेटिव पोटेंशियल एंड सेंटर विल बी एट पॉजिटिव पोटेंशियल। इमेजिन करिए कि ऐसी बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पोक्स बन गई, स्पोक्स ऐसी लगाते चले जाए, तो फाइनली क्या बन गया, ये ऐसा करते करते एक डिस्क बन गया। मतलब अगर एक डिस्क है जिसकी रेडियस L है एंड दैट डिस्क इज सिंपली रोटेटिंग, it is like a combination of infinite number of spokes connected in parallel. So all the spokes, the entire disk, when it is rotating, the center point of the disk will be at positive potential, the outer edge of that disk will be at negative potential, and the induced EMF will be same as half B into L square into omega. So that can act as a generator. So just take a disk, एक मेटल डिस्क ले लें हम, उसको मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा रखें कि उस डिस्क के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हो, और डिस्क को रोटेट करिए। ठीक है, डिस्क को एक हाई वेलोसिटी से रोटेट करना शुरू कर दीजिए, उसके सेंटर मोस्ट पॉइंट से और उसके एज से दो टर्मिनल्स कनेक्ट करके रखिए, दोस टू टर्मिनल्स यू विल हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस, इतना ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये डीसी होगा, देखिए, that will be moreover it will not be an alternating EMF, ये एक simple DC generator बन गया। Center point and the rim of this rotating disc will act like a DC generator, एक constant EMF generate होता रहेगा आपके लिए, E is equals to half। अब बताओ वो EMF तभी चेंज होगा जब ओमेगा चेंज होगा, अगर आप उसकी स्पीड बदलेंगे तो ओमेगा EMF चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कई बार ये आपके एग्जाम्स में पूछा गया है ये वाला एक्सप्रेशन, और इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी दे दिए जाते हैं, समटाइम्स न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दी जाएंगी और आपको ये ईएमएफ निकालना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मोशनल ईएमएफ। बेस्ड ऑन दिस टॉपिक यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड, दैट इज कॉल्ड एज एडी करंट्स, है ना। एडी करंट्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं उसका भी कॉन्सेप्ट मोशनल ईएमएफ ही है।
ठीक है, तो आई लीव दैट टॉपिक फॉर यू टू डिस्कस. अपने आप से करके देखिए जरा, उस टॉपिक को एक बार पढ़िए, है ना. व्हाट इज एडी करंट्स, अदरवाइज विल डिस्कस इट इन सम अदर डे. Some other day we'll discuss it.